Good morning, student. Today we shall resume the topic, the lesson, the necklace, and so far we have read about Matilda, Mrs. Loisel. She, in the first part of this video, we read that she didn't have a good dress, and in the second part, she didn't have jewelry. She bought the dress spending 400 francs, and she had to borrow jewelry from her friend Mrs. Forestier, and she went to the ball dance party. Everyone appreciated her beauty. Everyone wanted to talk with her. Everybody asked her name. She looked magnificent, elegant, marvelous, fascinating, and she was intoxicated with the pleasure of admiration. And while she was returning back from the party, she lost her necklace, which she borrowed from Mrs. Forestier. They looked for the borrowed necklace everywhere, but couldn't find it anywhere. So now we shall resume the topic from here. We have read till now. So her husband advised her to write Mrs. Forestier that the clasp of her necklace had been broken, so we will have to get it repaired. So let's resume. She wrote as it dictated. जैसा उसके पति ने कहा, मिस्टर लॉइजल ने कहा, मैटिल्डा ने वैसा ही क्या लिखा. At the end of week they had lost all hope. सप्ताह के अंत में सारी उम्मीदें धूमिल हो गई थी. And Loisel, older by 5 years, declared, we must replace this jewel. जो कि 5 वर्ष बड़ा था अपनी पत्नी से, उसने डिक्लेयर किया, उसने घोषणा की क्या कि हमें इस जो नेकलेस के बदले एक नया नेकलेस देना पड़ेगा. In a shop of Palace Royal, they found a chaplet of diamond. जो वो एक शोरूम में जाते हैं और वहाँ पे डायमंड का जो हार है वो देखते हैं. Which seemed to them exactly like the one they had lost. और वो बिल्कुल ऐसा का ऐसा जैसा उन्होंने खोया था. It was valued at 40,000 francs. इसकी जो कीमत थी, कॉस्ट थी, वो 40,000 40,000 रुपये थी. They could get it for 36,000 और 36,000 में वो लोग खरीद सकते थे. ऐसा उनमें उन्होंने बार्गेनिंग की और सेटल्ड हुआ, उसका जो रेट था फिक्स. लॉइजल possessed 18,000 francs और मिस्टर जो लॉइजल था उसके पास 18,000 कैश था, which his father had left him, जो उसके पापा उनके लिए छोड़ के गए थे. He borrowed the rest, बाकी का उन्होंने उधार लिया. He made ruinous, बर्बाद करने वाले, spoiled promises, उसने बर्बाद करने वाले promises किए. Took money from users and the whole race of lenders, और सभी जो उधार देने वाले जो क्रूअल मनी लेंडर होते हैं, साइलोग बोलते हैं जिनको, उनसे उन्होंने पैसा उधार लिया. Then he went to get new necklace, फिर नया नेकलेस खरीदने के लिए वो जाते हैं. Depositing on the merchant's counter 36,000 francs, 36,000 रुपये जमा करते हैं काउंटर पे. फिर वो जो नेकलेस होता है डायमंड, वो exactly same which they had lost in the party. When Madame Loisel, Mrs. Loisel took back the jewels to Mrs. Forestier, the latter said to her in a frigid tone. जब मिसेज लॉइजल मैडम फॉरेस्टियर जो उनके फ्रेंड्स के पास जाती है नेकलेस को देने के लिए, तो लेटर यानी कि दूसरी यानी कि फॉरेस्टियर क्या कहते हैं, फ्रिजिड टोन में, बिल्कुल एक शांत आवाज़ में, यू शुड हैव रिटर्न्ड देम टू मी सूनर, तुम्हें इसे मुझे पहले दे देना चाहिए था. फोर, क्योंकि आई माइट हैव नीडेड देम, और मुझे क्योंकि उसकी आवश्यकता हो सकती थी.
Madam Forestier did not open the jewel box as Mrs. Loisel feared she would. Mrs. Loisel को डर था कि कहीं मैडम फॉरेस्टियर इसको खोल के ना देख ले बॉक्स को, क्योंकि एग्जैक्टली सेम था वो नहीं था. What would she think? वो क्या सोचेगी if she should perceive the substitution? अगर इसके बदले में उन्होंने दूसरा पहचान लिया कि ये तो बदले का हार है, सब्सटीट्यूशन है, तो वो क्या सोचेगी? What should she say? फिर वो क्या कहेगी मैडम फॉरेस्टियर को, हर फ्रेंड को? Would she take her for a robber? क्या उसको वो रोबर, चोर, लुटेरा समझेगी? Took for समझना, understand. मैडम लॉइजल now knew the horrible लाइफ ऑफ नेसेसिटी. अब जो आवश्यकता की गंभीर जो परिस्थिति होती है, जीवन होता है अभाव का, उसको फेस किया मिसेस लॉइजल ने. शी डिड हर पार्ट हाउ एवर कम्प्लीटली हीरोइकली. उसने अपने हिस्से को, यानी अपना जो पार्ट था, अपनी भूमिका को सही निभाया, अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी को सही से फुलफिल किया, और वो भी बहादुरी के साथ. इट वॉज नेसेसरी टू पे दिस फ्राइटफुल डेट. और इस भयानक जो कर्जा था, 36,000 रुपये का जो था, नेकलेस था, 18,000 रुपये उनके पास कैश थे और 18,000 उनको बोरो करने पड़े थे. शी वुड पे इट, वो उनको चुकाएंगे वो. दे सेंट अवे द मेड, जो घर की नौकरानी थी उसको उन्होंने भेज दिया बाहर. दे चेंज देयर लॉजिंग, अपना जो रहने का जो ठिकाना था, प्लेस था, हाउस था, वो चेंज किया. दे रेंटेड सम रूम्स इन एन एटिक. फिर उन्होंने एटिक में, एक अच्छी जगह जो नहीं होती में, वहाँ पे कमरे किराए पे लिए, अटारी पे. सी लर्न द ओडियस होते घृणित, हेटफुल वर्क ऑफ किचन के काम को, क्योंकि सी यूज टू लिव इन ड्रीम लैंड. सी ऑलवेज थॉट ऑफ द लग्जरियस लाइफ एंड द किचन वर्क वॉज हेटफुल फॉर हिम, लूडिक्रस. तो इस काम को उसने सीखा जो हेटफुल था उसके लिए. शी वॉश द डिशेज, शी वॉश द सोइल्ड लाइनिंग देयर क्लॉथ एंड डिश क्लॉथ. अब उन्होंने बर्तन, कपड़े जो धोने, मांजने, बिल्कुल उनको धोना सीख लिया था अच्छे से. विच शी हंग ऑन द लाइन टू ड्राई. और कपड़ों को जो सुखाने के लिए जगह होते, जो वायर से हम हैंग करते हैं, उस पर उसने सुखाना सीख लिया था. शी टुक डाउन द रिफ्यूज़ टू द स्ट्रीट ईच मॉर्निंग. और जो रिफ्यूज़ होता है, गार्बेज, उसको ऊपर से स्ट्रीट के ऊपर डालना, उसने गली में डालना सीख लिया. ब्रॉट अप द वाटर, पानी लेके आते खुद जाके. स्टॉपिंग एट ईच लैंडिंग, हर जो स्टेयर है उसके पास रुकती. टू कैच हर ब्रेथ, क्योंकि ब्रेथलेस हो जाती वो, ऊपर जो फ्लोर के ऊपर वो रहती थी, काफ़ी चीप था रूम उनका, तो वहाँ पे जो बकेट को लेके जाती, तो जब सीढ़ियों से जाते वो तो थक जाते थे. तो टू कैच हर ब्रेथ शी वुड स्टॉप टाइम टू टाइम. एंड क्लोथ लाइक ए वुमेन ऑफ पीपल, मीन्स काफ़ी शब्बी सी ड्रेसेस को उन्हें उसको पहनना पड़ता. शी वेंट टू द ग्रोसर्स, बूचर्स एंड फ्रूटियर्स. मीन्स ग्रोसर जो किराने की दुकान पे जाती, बूचर्स कसाई की दुकान पे, और फ्रूट वगैरह की शॉप पे जाती. विद अ बास्केट ऑन हर आर्म, बास्केट अपनी खुद टोकरी लेके जाती. शॉपिंग, हैंगलिंग टू द लास्ट सू ऑफ हर मिजरेबल मनी. एक एक पैसे के लिए मोल भाव करते, हैंगलिंग बार्गेनिंग करते थे. एक एक पैसे के लिए उसने काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ती, मेहनत करनी पड़ती, बार्गेनिंग करती. द हस्बैंड वर्कड इवनिंग्स पुटिंग द बुक्स ऑफ सम मर्चेंट इन ऑर्डर. और उनके पतिदेव मिस्टर लॉइजल को रात तक काम करना पड़ता. अकाउंट्स वगैरह जो मर्चेंट थे, व्यापारी, उनके अकाउंट्स को सेटल करता, वो देखता. एंड नाइट से ऑफन डिड कॉपिंग एट 5 सू ए पेज. और रात को वो कॉपी का काम करता, एक पेज की नकल करता. 5 रुपये एक सू, यानी 5 रुपये के हिसाब से एक पेज, सू यानी कि 1 रुपया, तो 5 रुपीज़ के हिसाब से एक पेज को कॉपी करता. एंड दिस लाइफ लास्टेड फॉर 10 ईयर्स. और ये जो उनका सिलसिला था स्ट्रगल का, वो 10 वर्ष तक चला. एट द एंड ऑफ 10 ईयर्स दे हैड रिस्टोर्ड ऑल. और 10 वर्ष के अंत में उन्होंने सारा का सारा जो डेट था, लोन था, वो चुका दिया. मिसेस लॉइजल सेम्ड ओल्ड नाउ. अब जो मिसेस लॉइजल काफ़ी जो अट्रैक्टिव थी, फैसिनेटिंग थी,
मार्वलस लुक था उसका, स्पेक्टेकुलर लुक था। वो बूढ़ी हो चली थी, मीन्स सिम्ड ओल्ड, बूढ़ी दिखने लगी। शी had become strong, hard woman and crude woman of poor household। अब वो काफ़ी कठोर हो गई थी और जैसे गरीब महिलाएं होती हैं उनकी तरह वो दिखने लगी थी। हर हेयर बैडली ड्रेस्ड, बिखरे हुए बाल, हर स्कर्ट्स एवरी, और उसकी जो स्कर्ट्स थी वो बेढंगी सी थी, रिंकल्ड सी थी, सिलोटे वाली हो गई थी। हर हैंड्स रेड, हाथ लाल हो चुके थे। स्पोक इन द लाउड टोन, ऊंची ऊंची आवाज़ में पागलों की तरह बोलती। एंड वॉश द फ्लोर विद लार्ज पेल्स ऑफ वाटर, और जो फ्लोर था उसको वॉश करती, पानी को ऐसे फेंक फेंक के, थ्रो करके, बड़ी बड़ी बाल्टी से। बट समटाइम व्हेन हर हस्बैंड वॉज एट ऑफिस, लेकिन कई बार जब उनके पति घर से बाहर होते, ऑफिस में होते, तो वो क्या करते, शी वुड सीट herself before the window, खिड़की के पास बैठती, and think of that evening party of former times, और उस पार्टी के बारे में she would think of that party where she was appreciated by everybody and she felt intoxicated pleasure in herself, of that ball where she was so beautiful and so flattered। इतनी उसको अप्रिशिएट किया गया, उसको एडमायर किया गया, उसको कॉम्प्लीमेंट मिले कि वो उसको याद करते जब उनके हस्बैंड आउट होते ऑफिस में। How would it have been if she had not lost the necklace? कहते अगर मैं नेकलेस नहीं खोती, if she had not lost the necklace, how would it have been, कि कैसा होता। Who knows, किसको पता है कि क्या होता। How singular in life, means life भी कितनी strange है। एंड हाउ फुल ऑफ चेंजेस, और कितनी चुनौतियों से भरी पड़ी है, प्रॉब्लम से। हाउ स्मॉल ए थिंग्स विल रूइन और सेव वन, एक छोटी सी गलती इंसान को कितना बर्बाद भी कर सकती है और उसको सेव भी कर सकती है। इस बारे में वो से वॉज पॉन्डरिंग अबाउट दिस। वन संडे एज शी वॉज टेकिंग ए वॉक इन कैंपस एलिसिस टू रीड हरसेल्फ ऑफ द केयर्स ऑफ वीक, पास के पार्क में अपनी जो टेंशन से अपने आप को फ्री करने के लिए, गेट रीड ऑफ, आज़ाद करने के लिए वो पास के पार्क में घूमने के लिए जाती है मिसेस लॉइजल। शी सडनली परसीव्ड ए वुमेन, एक महिला को पहचानती है, वॉकिंग, चलते हुए विद ए चाइल्ड, एक बच्चे के साथ जो जा रही थी। इट वॉज मैडम फॉरेस्टियर, और ये मैडम फॉरेस्टियर थी। शी वॉज द सेम वुमेन whom she borrowed the necklace, still young, still pretty, अभी भी जवान, अभी भी काफ़ी pretty, सुंदर, attractive, आकर्षक। Mrs. Loisel was affected, उस पर प्रभाव पड़ा उसकी ब्यूटी का। Should she speak to her, क्या उसको, अब मिसेस लॉइजल ने सोचा कि क्या मैडम फॉरेस्टियर से बात करनी चाहिए। Yes, certainly, क्यों नहीं। एंड नाउ दैट सी हैड पेड, और अब तो क्योंकि उसने पे कर दिया था, सारा डेट उसने राइट ऑफ कर दिया था, पेड कर दिया था। सी वुड टेल हर ऑल, व्हाई नॉट, वो उसको सारी बातें बताएगी, क्यों बताई भी नहीं, उसने सोचा। सी अप्रोच्ड हर, गुड मॉर्निंग जिन, आप मैडम फॉरेस्टियर के पास मिसेस लॉइजल पहुंची और कहा कि जिन, गुड मॉर्निंग, जो उसका जो निक नेम था, जो कि काफ़ी जो नियर और डियर होते हैं वो उसको एड्रेस करते ऐसे नामों से। हर फ्रेंड डिड नॉट रिकग्नाइज हर एंड वॉज एस्टोनिस्ड टू बी सो फेमिलियरली एड्रेस्ड बाय दिस कॉमन पर्सोनेज। फेमिलियरिटी के साथ जब उसने कभी अपनेपन के साथ उस नाम को लिया, निक नेम को, तो सरप्राइज हो जाते और रिकॉग्नाइज नहीं कर पाते, पहचान नहीं पाते। सी स्टैमर्ड, एकदम हकलाई, बट मैडम आई डोंट नो, यू मस्ट बी मिस्टेकन। मैडम फॉरेस्टियर ने कहा मैटिल्डा को कि आप गलती पे, शायद मैंने आपको पहचाना नहीं। नो, आई एम मैटिल्डा लॉइजल। हर फ्रेंड अटर्ड ए क्राई ऑफ एस्टोनिशमेंट। जो ही उसने, मैटिल्डा ने अपना नाम बताया, मैडम फॉरेस्टियर के मुख से एक एस्टोनिशमेंट, सरप्राइजिंग की क्राई, चिल्लाहट निकली। ओ माय डियर, ओ माय पुअर मैटिल्डा, हाउ हैव यू चेंज्ड, तुम कितनी बदल गई हो। यस, आई हैव हैड सम हार्ड डेज सिंस आई saw you,
हाँ, मैंने काफ़ी बुरे दिनों का सामना किया जब से मैं तुमसे मिली थी लास्ट, एंड सम मिजरेबल वंस एंड ऑल बिकॉज ऑफ यू, और सब कुछ आपके कारण। उसने उसको कंप्लेंट से कि उल्हाना दिया, बिकॉज ऑफ मी, हाउ इज़ दैट? मैडम फर्स्टियर ने कहा कि मेरे कारण कैसे? यू रिकॉल ए डायमंड नेकलेस दैट यू लोन मी टू वियर टू द मिनिस्टर्स बॉल? यस, वेरी वेल। तुम्हें याद है तुमने एक बार मुझे, मैटिल्डा ने फॉरेस्टियर को कहा कि एक बार तुमने मुझे एक हार दिया था, उधारा लोन किया था, बोरो मुझे लैंड किया था पार्टी के लिए, मिनिस्टर के लिए। वेल, आई लॉस्ट इट। अब उसने कहा हाँ बिल्कुल याद है, लेकिन और वो मैंने खो दिया था। मैटिल्डा ने कहा हाउ इज़ दैट सिंस यू रिटर्न इट टू मी? कहता तुमने तो ये लौटा दिया था, फिर ये कैसे हुआ? आई रिटर्न अनदर टू यू एग्जैक्टली लाइक दैट एंड इट हैज़ टेकन अस 10 years टू पे फॉर इट। हमने एग्जैक्टली सेम दिया था, वो नहीं था। यू कैन अंडरस्टैंड दैट इट वॉज नॉट ईजी फॉर अस हु हैव नथिंग। और ये आसान नहीं होता जिसके पास कुछ भी नहीं होता, ना भारी कर्जा चुकाना बड़ा वेरी डिफ़िकल्ट जॉब होता है। बट इट्स ऑफ फिनिश्ड एंड आई एम डिसेंटली कंटेंट। लेकिन ये अब कम्प्लीटली बिल्कुल पेड हो चुका है और मैं कंटेंट हूँ, मैं हैप्पी हूँ। मैडम फॉरेस्टियर स्टॉप्ड शॉर्ट, एक बार रुका, उसको टोकर कहा, से सेड यू से दैट यू बोट डायमंड नेकलेस टू रिप्लेस माइन? मीन्स तुम्हारा मतलब तुमने एक डायमंड नेकलेस मुझे दिया था? यस, यू डिड नॉट परसीव इट देन, तब आपने उसको पहचाना नहीं, मैटिल्डा ने कहा। दे वर जस्ट अलाइक, वो दोनों एक जैसे थे। एंड शी स्माइल्ड विद प्राउड एंड स्माइल्ड सिंपल जो है। अब वो गर्व के साथ और साधारण हंसी के साथ अपने फ्रेंड्स की तरफ हंसी। मैडम फॉरेस्टियर वॉज टच्ड, द्रवित हो, उसको दया आ गई। एंड टुक हर हैंड्स ऐसे रिप्लाइड, उसका हाथ अपने हाथों में लिया। मैटिल्डा का हाथ मैडम फॉरेस्टियर ने अपने हाथों में लेते हुए कहा ओ माई पुअर मैटिल्डा, माइन वर फॉल्स, मेरे वाले तो नकली थे। दे वर नॉट वर्थ ओवर 500 francs, वो तो 500 रुपये से ऊपर का नहीं था, ये तुमने क्या किया? एंड this is the end of the story, student. I hope you enjoyed this well, and you must learn the lesson that we should not go beyond our resources. We should not try to show off ourselves. We should not feel proud on our beauty if you are truly attractive. So we should live a contented life, a simple life, and we should not be excessive desirous in our life. So may God bless you all. Have a great day.